Yes. So since lots of students have requested, please continue the YouTube channel and please start some videos. The plan to start with class 11th. So soon I will be uploading on the chapters of class 11th and 10th and 12th and so on. Okay, so let's start with this interesting chapter, the very first chapter of class 11th. That is chapter number 1. It's called sets. Now, I cannot emphasize enough how important this chapter is because in the second chapter also you will be using it. In 12th class, there is a chapter called relation functions. They will be using it in higher mathematics also, and various dimensions and branches of mathematics you will be using it. Now, it's a fundamental part, just like cell is a fundamental part, right? Just like that, sets is a fundamental part of mathematics. Here, there's this guy named George Cantor. He was the one who gave the stuff, like kind of came up with the theory of sets, right? George Cantor. So the name you should know. Okay. Now let's move on. Now there's something. What is set? First of all, let's understand what is set. The title of the chapter itself. What is set? What is set? Now usually you will see this definition in your books. A well defined collection of objects. I'm gonna take some examples from a book only, from your NCERT book. Now, if I say, let's say, if I say English vowels. So if I say English vowels, you will say A, E, I, O, U. Now, you cannot just add B or C, and it is a well-defined set, right? It is a well-defined set. So these two brackets along with the elements is called a set because it is well defined. If you're not getting it, let's take an example which is contradicting this statement. Let's say if I say the best batsman in the Indian cricket team. Now it may vary to person to person. Some may say V for Virat, let's say Sehwag and Dhoni. Some may say only Virat. Some may say that it is Rohit Sharma and etc. etc. Right? So you're getting my point, right? What I'm trying to say over here. So it should be a well-defined. It should be a well-defined collection of objects. It shouldn't be just random collection of objects. We'll take up some examples. We'll understand that also. Okay, and we'll move through the exercise. Now, if I talk about like rivers of India, it's a well-defined collection of objects, right? If I say Nile doesn't belong to this because it is a well-defined collection of objects, right? If I talk about, let's say, anything, let's take another example, odd natural number from your book only, I'm taking this odd natural number less than 10. Now it is well defined because 1, 3, 5, 7, 9. It doesn't vary from person to person. So that means it's a set. A set is a well defined collection of objects. Remember this term, well defined collection of objects. It is much more than that actually, but we will study about that in higher mathematics. For the time being, this is enough well defined collection of objects. Okay, now we know that who gave the terms set, George Cantor, and what is a set, that also we know. Now, before we move ahead with the chapter, there will be certain notations that will be used in the chapter. So let's go ahead with the notations that you may have studied before also. Now, the very first notation is, as you can see over your smartboard, that it is set of all natural numbers, right? And Z is the integers. It came from the word Zehlen, right? It's German word. It's German word, which means to count. Okay, so it came from that. Now Q stands for rational number. It came from an English word called quotient. Quotient means something over something, right? So that. Now R is real number. Z plus is positive integers like 1, 2, 3, 4, and so on. Remember, zero is neither positive nor negative. The set of all positive rational numbers, if I take only positive rational numbers, that will be Q plus. And if I take only real positive real numbers, so it will be what? It will be R plus. So these are the notations that we are going to use throughout the chapter that we should have discussed once. So we have done that. Let's move on to the next slide and let's discuss the next couple of points. Now, as you can see, this is a statement from your book. A set is a well-defined collection of objects. We have already discussed that. Now, बच्चों, what happens usually that इसके अंदर जो elements होते हैं A, E, I, O, U, ये elements
को हम एलिमेंट्स बोल देते हैं, कभी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कभी मेंबर्स बोलते हैं। बात एक ही है, मैं एलिमेंट्स वाला टर्म यूज करूंगा। ओके, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। ठीक है। और सेट्स को ज्यादातर किसी बिगर अल्फाबेट्स लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि वॉवल्स का सेट लिखो, तो ऐसे करके लिख दिया जाता है। ठीक है, A E I O U, दैट ए इज अ सेट ऑफ वॉवल्स, राइट। तो ऐसे करके बोल दिया जाता है, और उसके एलिमेंट्स यूजुअली स्मॉलर लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, so no need to worry. So after that point, let's move over to more points. Okay. Now, something that you should know, in maths, we have so many symbols, right? There's another symbol like this. At your level, it is called belongs to or not belongs to, let's say. Okay. Now, if I say A belongs to A, let's say if I have a collection of vowels, right? A E I O U, right? Now, on purpose, I've written the order like in an absurd manner. I've not written A E I O U, I've written A I O U E. What does it mean? That order doesn't matter here. Okay, does not matter. आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी के लिए इतना ही समझे। नाउ ए बिलोंग्स टू दिस सेट, दिस इज द साइन फॉर बिलोंग्स टू, मतलब उसमें जा रहा है, उसमें बिलोंग करता है। अगर मैं बोलूं व्हाट डजंट बिलोंग, इफ आई से बी, इट डजंट बिलोंग टू इट, so it means doesn't belong, and this guy means belongs. Pretty easy, right? So the set chapter is very easy, right? Okay, so now you know the symbols. This is a belongs to symbol, and this is a not belongs to symbol. Let's move forward. Now, there are two ways to represent a set, as I was talking about, roster form or tabular form. Another one is called set builder form. Okay, हम दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे इधर बच्चों। तो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वन इज रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, जो अभी तक हम कर रहे थे। दूसरा इज सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं होता जो हम कर रहे थे ऐसे, टैबुलर फॉर्म में कॉमा कॉमा लगा के, जैसे A E I O U, this is roster form. The brackets are there, and you just put on the elements with the comma. This is roster form. Okay, if I have to say about that, odd numbers less than 10, 1, 3, 5, 7, 9, these are the members of that set, and this is the roster form. Now, what is set builder form? इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, पहले अभी set builder form भी देख लेते हैं। Set builder form builds the set. Now, अगर मुझे यही चीज लिखनी है set builder form में, how will I write? The set of all x such that x is a English alphabet vowel, you can say alphabet vowel, or vowel of English alphabet. The language doesn't matter, but these things matter, how you build the set. So now over here, this thing right over here is called the set. इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, द सेट ऑफ ऑल। इस पूरे कर्ली ब्रैकेट को आप ऐसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल। इसको एक्स, इसको कैसे पढ़ते हैं? इज सच दैट। तो अगर मुझे इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ना है, तो हाउ विल आई रीड? इस सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इज ना लगाए चलेगा, सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट? एक्स इज अ वोवल। अरे इसको और अच्छे से लिख लो भैया, इंग्लिश हैंडराइटिंग है। एक्स इज अ वोवल of English alphabet. Okay, so this way you can write. अगर हमें ये लिखना है set builder form में, you can write this also. The set of all x such that x is a natural number, or you should say odd number, right? X is an odd number where x is less than 10, right? 10 से लेस वाले हमें बताने हैं। तो इस तरीके से बच्चे आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, ना याद रहे, इस वाले में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, राइट? ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक और चीज रोस्टर फॉर्म में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ स्कूल वर्ड को आपको सेट फॉर्म में लिखना है, तो अब S, C, H, O दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, आप इसका वो ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन आप इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू राइट दिस, एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो।
Okay, order doesn't matter over here. So I hope that is clear. So आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेस बन गया है. So let's move on to the first exercise. First exercise. आ जाओ भाई. फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ. Which of the following are sets? तो ये बच्चे अब आपका बेस बना रहा है. फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नहीं, बहुत आसान है. Remember, set is a well-defined collection of objects. Is a well-defined collection of objects or elements or members, right? पहला देखते हैं. The collection of all months of a year beginning with the letter J. भाई ऑब्वियसली फिक्स्ड है. देयर आर फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स, राइट, जो जे से स्टार्ट होते हैं. जनवरी है, फिर क्या जून है, जुलाई है. फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स हैं, तो वेल डिफाइंड हो गया, तो ये तो सेट हो गया. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. भाई सबके अलग अलग है. मेरे हिसाब से कोई और राइटर होगा टैलेंट, तुम्हारे हिसाब से कोई और होगा, तो वेल डिफाइंड नहीं है. जस्टिफाई आंसर में आपको यही बोलना है. सिंस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट अ सेट. ओके, इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन. जहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स आते हैं, मतलब फीलिंग्स रिलेटेड, मोस्ट, ब्यूटीफुल, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्रीज जो इंग्लिश की होती हैं, वो सेट नहीं होते ज्यादातर. ओके, सो दिस इज नॉट अ सेट. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट, फिर से देखो बेस्ट, राइट, तो ये भी नहीं होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो फिक्स्ड है, राइट. Let's not talk about the gender thing though in much in detail, but collection of all boys is a fixed thing, right? It's a well defined biologically speaking. The collection of all natural number less than 100, obviously we can count them, they are fixed, so that is also a collection well defined. Collection of novels written by Munshi Premchand, that is also fixed, there is a certain number that he has written. The collection of all even numbers, collection of all even integers, yes, it is a set. It may be an infinite set, but it isn't set, right? It's a well defined set. Okay, let's move forward to the next one. Next question. The collection of all questions in this chapter. भाई वो भी फिक्स है. मान लो 1000 है, 100 है, जो भी है, लेकिन फिक्स तो है ना, वेल डिफाइंड है. सो यस. मोस्ट डेंजरस, फिर से मोस्ट वाला वर्ड आ गया. नो. तो आपको एक ट्रिक सी पता चली. जहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है, सुपरलेटिव होता है, बेस्ट, बेटर, फलाना फलाना, ब्यूटीफुल, वो जो भी चीजें हैं फीलिंग्स रिलेटेड है, उसमें ये सेट नहीं होता है. ठीक है. Now there is a set A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to the blank spaces. Okay. अगर इसमें होगा तो belong to, 5 इसमें है तो belong to, 8 इसमें नहीं है तो not belongs to, 0 doesn't belongs to, 4 belongs to, 2 belongs to, 10 doesn't belongs to. Next one. Write the following sets in roster form. Now things are going to get interesting now. आपको इसको roster form में करना है. देखो बच्चों, आपको दोनों आना चाहिए. रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में करना, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में करना. इफ रिमेंबर, रोस्टर फॉर्म बस ऐसे ही इसमें हम कॉमा करके लिखते थे, उसके हम रोस्टर फॉर्म कहते थे, AIO AE यहाँ लगता है. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते थे प्यारे बच्चों, हम उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते थे. और वो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी जाती है कि वो प्रॉपर्टी सारे मेंबर्स शेयर कर रहे होते थे. ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी एक. चलो पहला देखते हैं. A is A is equal to set of all x such that x is an integer और x minus 3 से 7 के बीच में लाई है. ठीक है भाई, याद रहे इसमें इक्वल टू साइन है, मतलब इंक्लूडेड है, तो -3 माइनस इंटीजर है, डेसिमल वाला नहीं ले सकते. -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए यहीं पे खत्म हो जाएगा. 7 नहीं लेना है. x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, अगेन लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो 6 इंक्लूडेड नहीं होगा. 1 2 3 4 एंड 5 एंड वी आर डन. x is a two digit natural number such that the sum of its digits is 8. दो डिजिट का नेचुरल नंबर का है और उसका सम जो है 8 होना चाहिए. देखो 17 होता है तो उसका उल्टा भी होगा, टू डिजिट वाला बच्चे. 2 6 है तो 6 2 भी होता है. एक लिखो दूसरा मिल जाएगा. 44 का उल्टा, तो 44 रिपीटेशन नहीं करना होता, रोस्टर फॉर्म में याद है तो. 80 08 मतलब देना हो सिंगल डिजिट का है. 35 तो 53 भी हो सकता है, राइट. सो ये सारे जो डिजिट्स हैं, टू डिजिट ऐसे नंबर्स हैं जो सारे का सम दोनों डिजिट्स का 8 आता है. 5 + 3 8, 3 + 5 8, 8 + 0 8, लाइक दैट. ओके. नाउ x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइडेड ऑफ 60. तो ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, रिमेंबर. 1 इज नाइदर अ कंपोज नंबर नॉट अ प्राइम नंबर. 2 है, 3 है, और 4 नहीं, 4 तो नहीं है. 2 है, 3 है, और कौन सा प्राइम नंबर? 5 भी है. 5 ऑल्सो डिवाइड्स. बाकी सब तो प्राइम नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड करेंगे, राइट. 4 मत लिखे, ठीक है.
सो ये सारे नंबर्स हैं, बाकी डिवाइड करते हैं लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, राइट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। अब देखो यहाँ पे आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ओ 2 बार है, अगर कोई भी लेटर टी भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, तो आपको रिपीट नहीं करना है, आप एक ही बार लिख सकते हैं। TRIGO, जो जो मुझे दिख रहे हैं मैं एक एक बार लिख रहा हूँ, MEY, राइट, इस तरीके से मेंबर्स आप लिखें। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, फिर से देखो आपको 2 3 दिख रहे हैं, आप नहीं लिखेंगे ई को 2 बार, ई को 2 बार, और ऑर्डर कुछ भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज व्हाट इज रोस्टर फॉर्म इज ऑल अबाउट। सो आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आई होप आपको आ गया होगा। अब हम उल्टा करने चल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आता है इसमें। चलो लेट्स मूव ऑन टू सेट बिल्डर फॉर्म टू। चलो क्वेश्चन नंबर 4, आपको राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो इसमें करना क्या होता है प्यारे बच्चे, यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स तो सब में कॉमन हो। जैसे अगर इसमें आप देखेंगे सारे 3 के मल्टीपल हैं, राइट, और 3 का मल्टीपल कहाँ तक चल रहा है, 4 तक चल रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं एक्स, और जरूरी ना हमेशा इंग्लिश फॉर्म में लिखें, आप इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, वेयर, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है एंड n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। देखो क्या सेटिस्फाई होती है चीज, बिल्कुल होती है। देखो अगर मैं n नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, 3 इंटू वन 3 पहला आ गया, देखो दूसरा डालो n2 6 आ गया, ऐसे करके 9 भी आ जाएगा, 4 12 भी आ जाएगा। इसलिए आपको एक एक ऐसी इनक्वालिटी भी देनी पड़ी, राइट। चलो तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ, 2 की पावर n, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है, राइट। सेकंड वाले में लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, का मतलब क्या होता है, करली ब्रैकेट में सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको कैसे पढ़ते हैं, सच दैट, इंग्लिश में अगर पढ़ना है इसको, सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n। प्यारे बच्चों आपने देखा ये 2 की पावर 4 हो जाएगा 32, राइट। 2 की पावर n वेयर n इज अगेन अ नेचुरल नंबर। अच्छा 2 की पावर 5 होगा प्यारे बच्चों, 2 की पावर 4 तो 16 होता है। तो n की वैल्यू इस बार 1 से लेके 5 तक है, ध्यान से देखो 5 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, राइट। और नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा वरना डेसिमल भी हो सकता है, तो नेचुरल नंबर लेना पड़ा, तो पहले और दूसरा डन है। थर्ड वाला देखो, कैन यू ऑब्जर्व, दिस इज 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर, बिल्कुल वैसे ही चले जा रहा है बार बार। सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, एंड व्हाट, n की लिमिट क्या होगी, 1 से लेके 4 तक, राइट। थर्ड भी हो गया हमारा, तो फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में देखो सिंपली दिख रहा है एक्स इज एन इवन नंबर, इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट के तो इसमें काउंट नहीं कर पाते, राइट। तो कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इवन, इवन नेचुरल नंबर, ऑफ इवन नंबर, बातें की है, बस कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। अगला 1 4 9 एंड 100, देखो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट देखते हैं, अगले पेज पे आते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर पे आते हैं। क्या आप ऑब्जर्व करो बच्चे ध्यान से, फिफ्थ वाला सेट को ऑब्जर्व करते हैं। Can you observe that this guy is actually a square of everything? This is square of 1, this is square of 2, this is square of 3, and so on. This is square of 10. So I think we have landed up with a property. And how can we write this property? X equal to n का square, कोई भी नंबर का स्क्वायर है, जहां पे n जो एक नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों, एंड n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक फ्लक्चुएट कर रही है, 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक, 1 और 10 इंक्लूडेड है, इसलिए इक्वल टू साइन। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म्स बनाना आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म से, मतलब दोनों वाइस वर्सा आना चाहिए। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, दोनों बनाना आना चाहिए। फिर अब आगे मूव ऑन करते हैं, वी आर कमिंग टू क्लाइमेक्स ऑफ द क्लाइमेक्स ऑफ द एक्सरसाइज। चलो अब हम ये करेंगे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग से, इन अ वे क्या बोल रहे हैं आपको, कि भाई हमने आपको दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म, एक तरह से वही बोल रहे हैं। चलो तो पहला वाला देखते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो बस ऑड नेचुरल नंबर, तो ये तो इनफिनाइट सेट हो जाएगा कि कैसे चलते चले जाएगा, राइट। तो पहला तो हो गया। दूसरा देखते हैं, एक्स इज एन इंटीजर और एक्स की वैल्यू -12 से 9/2। अब इंटीजर जो है इससे जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर, जीरो होता है, -1 से छोटी है वैल्यू, और जीरो से बड़ा हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। फ्रैक्शन तो इंटीजर होता नहीं है, तो मतलब जीरो पहली वैल्यू होगी फिर। और ये देखो ये क्या है 4.5, मतलब 4.5 से लेस वाला इंटीजर कौन है, 4, राइट। तो 1 2 3 4 तक जाएगा, इंटीजर्स हैं सारे। अगला, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो बच्चे, जब ऐसे लिखा होता है ना, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है,
कि एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब ये होता है। आप एक चैप्टर पढ़ोगे मेरे साथ लीनियर इक्वालिटीज, वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप -2 से 2 के बीच में कितने भी वैल्यू ले लें और ये इन दोनों को भी ले लें, हमेशा 4 से लेस ही या फिर बराबर आएगा स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ पे सी के अंदर जो वैल्यूज लेंगे वो इस लिमिट के हिसाब से लेंगे। दिस फैंसी वे ऑफ राइटिंग लाइक दिस। तो -2, -1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो थर्ड हो गया। एक्सेल लेटर ऑफ द वर्ल्ड लॉयल, तो भाई लॉयल को एल को दो बार मत लेना, एक ही बार लेना। तो ये रहा लोया। ओके। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो भाई जिनमें 31 डेज नहीं होते, तो भाई ये तो कैलेंडर है। फेब्रवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, राइट, तो हो गया। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट जो वोवल नहीं होते, तो एफ इक्वल टू बी, सी, डी, ये तो वोवल है, एफ, जी, एच, आई भी वोवल है, जे, के से पहले, राइट, के इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। कितनी अच्छी से प्रैक्टिस हो रही है। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है भाई। 1 2 3 6, एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, दिख रहा है भाई सीधा का सीधा। एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 इज अ प्राइम, अरे ये तो देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो पहला तो नहीं हो सकता, तो ये तीसरे से करेगा, राइट। तीसरे से डिवाइजर ऑफ 6 और नेचुरल नंबर है। 2 3 एंड 2 3 प्राइम है और डिवाइड 6 को करते हैं, ये होगा एक के साथ, राइट। ये तो मैथमेटिक्स से आ रहा है, ठीक है। और बचा तो यही प्यारा बच्चा, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने पहले भी किया था एक्स इज और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है मेरे बच्चों। अब मैं आपको एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।